Assalamualaikum. My name is Shazib Qureshi, and my topic is representation of stereotypical Pathan culture and stereotypes in Pakistani films. So, I will start my topic from the objective. Why I'm doing this research. The objective of this study is to recognize racism against Pakhtuns and for the betterment of representation of the Pakhtuns in our films and dramas. Another objective is also to identify the root cause behind this racism, eliminate it. Why do films and dramas still have stereotype racism towards, and what is the cause of it? And how much it will take time to eliminate the racism from these industries and Pakistan itself. Introduction. As we all have seen the movie Janan, which is launched on 2016, very romantic movie directed by Asfar Jafri, based on Pakhtun culture. Janan feature a triangle between leads Armina Khan, Ali, and Rahman Khan, and Bilal Ashraf. The film is rom-com, but the narrative focus on alterning the bias people hold against Pakhtuns. There are many aspects of racism in Janan. A major issue that is brought up by many Pakhtun in the eliminate of pedomorphia, which is most of the time it not always attached to the Pakhtun. It makes the film industry abandoning the fact that major cause of rapes and killing of children in Kasur. By attaching this observer image of the film, the racism and Pakhtun have affected their look to not only Pakistan but to the outside world as well. Due to this, wherever we hear the name Pathan, we associate them as rapists, pedophilies, and terrorists. In July 2020, this is just an example, Bulbuli released a new episode including a Pathan character in it. The main character assumed that he might have bought a bomb or Naswar with him. This made a lot of controversy on social media, and ARY apologized on the action. Things like this manipulate our minds. Background and stereotypes. Racism also has its root deep in Bollywood. Every year there is something new from Bollywood movies, but the one thing that has remained common after all these decades in racism. If you think about it, it is normalization of the words like Gori, Goria, and Gora that largely amount for this problem. मैम इसके साथ मैं वीडियो एक ऐड करना चाहता हूँ। ये किसी ड्रामा या किसी जगह से नहीं है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है यूफोन की जिसमें पठान को लिया गया। गद्दा कहा था। तो जैसे मैम आपने देखा कि सिर्फ ड्रामास में नहीं, फिल्म्स में नहीं, जबकि पठानों को हम हर जगह टारगेट करते हैं, इवन के कमर्शियल्स में, और ऐसे यूफोन की पूरी सीरीज बनी हुई है जो कि पठानों के ऊपर बनी हुई है और उसके अंदर उनको प्रॉपरली डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। तो उसके साथ फिर आगे मैं फिर ये गोरा और गोरी वाला भी एलिमेंट ऐड किया कि ये भी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो बॉलीवुड में या हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी अब बहुत ऐड इन हो गया है। Stereotypes in Pakistan films, to study how minorities and represent in Pakistan films, to examine how picture divide minorities in Pakistan films. No matter practicing idea, it has been that a collection of individuals sharing common religious belief, language, and social patterns are always given knees showing and keeping unity. It is an attribute of those state considering ethics and also religion minorities having the citizenship of their representative states. We are living in the age of electronic and also technology improves. It cannot be denied that media is one powerful device that is effectively influential in photo structure and also motivate numerous particle action. It is a tool for connecting as well as forecasting the image of the globe. In the research today, in between ridiculation and the democratization is an unraveling dispute. Media in Pakistan carrying out of international media support 2009. It is mentioned that Pakistan media enjoy fairly independent regardless to the tribulation, national politics as well as racism behalf on the states. Christian minorities in Pakistan issue also option. Georgia 2008 states that it does without stating that Pakistan Christians are treated as second class people, not legitimately yet in function.
This is my roadmap, how I did the research, methodology, and all references, conclusion, discussion. So methodology is the research has adopted quantitatively and also qualitative technique to attain the object and to examine the effect and the representation of minorities in Pakistan movies. Content analysis. The study has collected information and also informed the assess mainstream Pakistani movies. The research study is the very much significant in it attempt to reveal the meaning of the tales providing by Pakistan cinema in the name of culture. इसके अंदर मैंने ड्रामा की बात भी की है। ये एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, 2 ग्राफ्स हैं ये। इसमें ये चल रहा है कि 3 किस्म की मूवीज़ बनती हैं। एक पॉजिटिव फ़िल्म्स होती हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक मिक्स्ड फ़िल्म्स होती हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ़िल्म्स बनी गई हैं, वो 75% बनी गई है, जो कि नेगेटिव फ़िल्म्स हैं, जिसके अंदर किसी न किसी एस्पेक्ट से किसी न किसी बंदे को टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे पठान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। तो पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिसमें आप किसी न किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, जो कि लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दे रहा होता है। एक ये दूसरा चार्ट है, जिसमें सेम ये नज़र आ रहा है कि नेगेटिव फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा बनती है, जिसमें पॉजिटिव आंसर नहीं होते, पॉजिटिव फ़िल्म्स बहुत कम बनती हैं। Objective to the study are following: to study how minorities and represented in Pakistan films, to examine how pictured despite minorities in Pakistan films. Hypothesis: after performing a pilot study of Pakistan movies, the complying of the hypothesis has been developed as well as evaluation. The presentation of unwilling representation of non-Muslim personalities would certainly be better as compared to the proportion of positive image of non-Muslim in Pakistan flicks to the Pakistan movies mirrored the positive image of the minorities in Pakistan. Research questions इसके अंदर जो ऐड हुए, whether the research is based on the following research question: either Pakistan movie is providing favorable or negative represent to a minorities. Is there any type of bias in Pakistani movies while standing for on display? Does the representation of minorities Pakistan film consider which the presses politics also the social setting of minorities in Pakistan society? Limitation: this research belongs to the aesthetic representation of minorities in Pakistan film. For that reason, it is not research other components of films manufacturing the study. Conclusion is this: the research study has actually been conducted with the aim of research how minorities are stood for in Pakistan films and to take a lot exactly how photos illustrate minorities in Pakistan movies consequently, which is offering favorable or advertised despite minorities social roles. Truth media is also discussed, evaluated, and wrapped up. The media has the power of transform the narrative and also must play a role in advertising religiously harmony and also tolerant and also representative from minorities neighborhoods for acceptance. Thank you. जी क्वेश्चंस बंद ना करिएगा प्लीज। जी क्वेश्चंस कायनात कोई कमेंट क्वेश्चन? आतिर? हाँ मैम, मेरा तो बस यही था कि ये पठानों को रैंक करेंगे हम, लेकिन क्या ये समझते हैं कि पठान माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में? जी शाजिब? जी बिल्कुल माइनॉरिटीज में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट जैसे कि मैंने 2 चीज़ों को इस प्रेजेंटेशन के अंदर मर्ज किया है कि मेरा टॉपिक पठानों को है कि पठानों को दिखाना है कि वो पाकिस्तान फिल्म्स और ड्रामाज में उनको किस लेवल पे रखा जाता है। तो मैंने मर्ज ऐसे किया है कि जैसे हम प्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज में इंडियंस को या माइनॉरिटीज को, वैसे ही एज इट इज ट्रीट किया जाता है पठानों को भी। माइनॉरिटीज नहीं है, माइनॉरिटीज में नहीं है वो, लेकिन ट्रीट ऐसा ही किया जाता है। और ये सब गवाह है, हर मूवी, हर ड्रामा, हर एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही उनको ट्रीट किया जाता है। जी और कोई क्वेश्चन आतिर? नो मैम, हमारे पास आसिम खान है, आज क्लास में नहीं है, नहीं तो शायद उनकी एग्जांपल भी दे सकते थे। वैसे प्रेजेंटेशन वाज गुड। उनकी एग्जांपल कैसे दे सकते हैं?
मैम हम भी उसे तंग करते हैं अक्सर एज अ हाँ, पठान। क्योंकि वो क्लास में है तो वो पठान है, हम उसको अक्सर मतलब उसको तंग करते हैं, कहीं किसी ना किसी बात पे कर रहे होते हैं, उसको टीज करते हैं हम। ओके जी। हंजला, कोई कमेंट या क्वेश्चन? शजी हसन। मैम ओवरऑल अच्छी एक्सप्लेन की, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी जी, शजी हसन। नहीं मैम, एज सच क्वेश्चन तो कोई नहीं है। बाकी मतलब बेहतर थी इन द सेंस के जैसे अभी आतिर भाई, वही एक पॉइंट था आतिर ने जो पूछा था, तो वो उन्होंने बताया कि जी उस तरह से उसको रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। अदरवाइज तो आई थिंक बेहतर थी, ऑल कंटेंट राइट। ठीक है। सिवाय जी सिवाय मैम एक आध वो फिर आप अभी बताएंगे, जैसे तो वो जो रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनकी वो लैंग्वेज पर्टिकुलर जो होती है, अदरवाइज तो ठीक था। राइट, ओके। शाहजेब, मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंटेशन बंद ना करिएगा, क्योंकि हम जी मैम, प्रेजेंटेशन को देख रहे थे। सिर्फ एक ऑन है सेकंड। मैम प्रेजेंटेशन। जी जी। आपको मैं आप एक फाइल मैंने शेयर की है आपसे, जो आपको ये नजर आ रही है। जी मैम, जो आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, जी जी हाँ, जो मैंने शेयर की, अगर आपको वो नजर आ रही हो तो मैं ये जी, देख बिल्कुल आ रही रही थी कि हमारे पास जो थे वो हमारे पास सेपरेट टॉपिक्स भी मौजूद थे। हमने फॉर इंस्टेंस आपने ये वाला टॉपिक 12 उठाया, रिप्रेजेंटेशन है। ऑफ जी अ पठान और पश्तून कल्चर इन पंजाबी और उर्दू फिल्म्स। ठीक है। जी तो मैम। आप उसको जो था, मतलब अगर आप अपने उसके अंदर जो है, अभी आपने कहा नहीं अपनी प्रेजेंटेशन में कि आप उर्दू पंजाबी फिल्म्स उठा रहे हैं, या जी मैम, आप पश्तो फिल्म्स भी उठा रहे हैं साथ में, मतलब आप मैम पश्तो को भी इंक्लूड कर सकते थे। आप क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली? मैम उर्दू फिल्म्स का ही है, क्योंकि जनान और जवानी फिर नहीं आनी ऐसी 3-4 मूवीज के अंदर प्रॉपरली पठानों को टारगेट किया गया, तो मैं उर्दू मूवीज अच्छा, पे ठीक है, लेकर चलना चाहता ठीक है। है। बाकी चीजें जो एड इन की है वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन को एनहांस और अच्छा करने के लिए की हुई थी। ऑल राइट। अच्छा, मैं इसमें ये देख रही थी कि ये क्वेश्चन आप 11 और 12 को देखें ना, माइनॉरिटीज इन पाकिस्तानी स्टूडेंट फिल्म्स, और फिर नंबर 10 पे लिखा हुआ है माइनॉरिटीज इन पाकिस्तानी फिल्म्स। राइट, तो 10, जी 11 एंड 12, हमने 10, 11 और 12 को ना 3 सेपरेट टॉपिक्स के तौर पे दिया था। तो क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के काम से से वाकिफ भी होते हैं, और अदरवाइज अगर एक दूसरे के काम से वाकिफ ना हो, इवन देन यू कैन फाइंड आउट कि स्टूडेंट्स किस तरह की फिल्म्स बना रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि आपने माइनॉरिटी और पठान को जो हमने सेपरेट टॉपिक्स दिए हुए थे, आपने उसको किसी हद तक मिक्स कर दिया। तो हालांकि आपने आतिर की एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया। आपकी फाइल ना नजर नहीं आ रही, आप कह रहे थे आपने शेयर की हुई है, बट आई कांट सी इट, इसलिए मैं आपसे कही थी कि उसको आप शेयर ही रखें। तो सबसे पहला कमेंट तो यही था कि हालांकि आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि आप उसको जो है वो पठान को माइनॉरिटी समझते हैं, तो इस वजह से आप उसको माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि हमारे पास चूंकि सेपरेट टॉपिक्स मौजूद थे, तो अगर आप उसको सेपरेट ही रख के चलते तो वो हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना होती ना सुनने में। तो शुरू का आपने जब प्रपोजल देना शुरू किया, तो मैं बेसिकली उसको यही समझ रही थी कि आपने, मैं बल्कि बड़ी खुश भी ओवरऑल, जनरली आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये वाला टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया कि पठानों को फिल्म किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, या पठान का स्टीरियोटाइप किस तरीके से कर रही है। और आपने उसकी एग्जाम्पल जो है वो एवरीडे लाइफ से भी दे दी कि हम सोसाइटी में किसी ना किसी कल्चर को हर वक्त कमेंट ही करते रहते हैं। तो जिस तरह पठानों के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हुए हुए, उसी तरह हमें पता है कि सिखों के भी स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हुए हुए। हम नॉर्मली सिखों को, सिख कम्युनिटी को हम काफी अक्सर, जो आपको लिटरेचर में तो सबसे पहले, या जोक्स आपको सबसे पहले नजर आ रहे होंगे कि हम उनको स्टीरियोटाइप्स में उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, प्लीज उसको जरा शेयर्ड ही रखिए, क्योंकि शजी हसन ने भी जैसे अभी आपको मेंशन किया कि मुख्तलिफ जगहों पे आपकी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, वहां पे अगर आप, आपके जिस स्लाइड पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, अगर आप उस स्लाइड पे जाएंगे, शाहजेब जी, जी शाहजेब जी जी, जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर। बैटरी, नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, आप स्क्रीन को बार बार अनशेयर कर देते हैं। आपकी शायद फोन की बैटरी नहीं है,
तो मुझे ये बताइए कि आपका लैपटॉप पे अगर आप खोलते प्रेजेंटेशन तो ज्यादा आसान था ना, जरा प्रेजेंटेशन खोलें क्योंकि आपके जो है जी मैम, अब शेयर हो गई होगी। जी जी, तो आप जरा उस स्लाइड देखिएगा जिसपे आपने ये बैकग्राउंड लिखा हुआ था। जी। अच्छा, अब आप यहीं पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसके ने ये वर्ड्स जो गोरी और गोरिया जो इस्तेमाल किए हैं, ये मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि आपका इन वर्ड्स से क्या मतलब था। मैम इन वर्ड से सिंपल ये मतलब था कि जैसे हम पठानों को छेड़ते हैं ना, ऐसे ही मैं स्टीरियोटाइप जो है ना लोगों का, उसकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेसिकली, कि हम क्रिश्चियन को भी नहीं छोड़ते, हम सिख को भी नहीं छोड़ते, हम इवन के कलर टोन पे भी किसी को नहीं छोड़ते। तो इतना स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि आप फिल्म्स के अंदर गानों के नाम आपने एग्जैक्टली ये रख दिए है, ओ गोरिया इधर आ, या इस टाइप के, और है हम काले हैं तो क्या हुआ, इस टाइप के मतलब स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। इसकी जस्ट एन एग्जांपल कि ऐसी चीजें भी हैं। अच्छा, ये आपने स्टीरियोटाइप के ऊपर ये बात की। एक्चुअली हम जो भी बात कर रहे होते हैं ना उसको हम जो हमारा कोर होता है ना, जैसे अगर आपने शुरू में डिस्क्राइब कर दिया कि आपकी आपकी रिसर्च की जो स्पाइन है वो पठान की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, तो हम जी जितनी भी हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो हम उसको जरा क्लैरिटी से दे रहे होते हैं कि जिस तरह पठानों का स्टीरियोटाइप है। तो ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका मकसद स्टीरियोटाइप क्रिएशन था, सोसाइटी जो है जी वो मैम। स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देती है, तो देन इट इज फाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था उस वक्त। बस वो मैं लिखना भूल गया कि मैं बैकग्राउंड से पहले सिर्फ लिखता था टाइप्स एंड बैकग्राउंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप। तो टाइप से पता चलता कि किस किस टाइप की स्टीरियोटाइप्स हम बेसिकली मूवीज के अंदर दिखाते हैं। तो ये जो अच्छा, उसकी एग्जांपल थी। ऑल राइट। अच्छा, जरा अब आपका इससे अगला जो स्लाइड था, हाँ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, वहां पे आगे जहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ था स्टीरियोटाइप्स। जी। अच्छा, ये आपने ऊपर इसके नीचे आपने ऑब्जेक्टिव के स्टाइल में लिखा हुआ है, टू स्टडी हाउ माइनॉरिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन पाकिस्तान एंड टू एग्जामिन हाउ पिक्चर डिपिक्ट माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। ये आपका पहला स्लाइड था जिसने जी मुझे मैम। एकदम ऑल ऑफ ए सडन मुझे कंफ्यूज किया था, क्योंकि आप पठान की बात करते आ रहे थे ना। तो जी इसको जी आप सीधा सीधा लिख सकते थे, टू स्टडी हाउ पठान जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन पाकिस्तानी फिल्म। तो सिर्फ वर्ड जो था वो माइनॉरिटी के बजाय पठान होना चाहिए था, या टू एग्जामिन हाउ पिक्चर्स डिपिक्ट पठान इन पाकिस्तानी फिल्म, तो वर्ड माइनॉरिटी के बजाय पठान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ताकि बिल्कुल आप ठीक है। जब वर्ड की प्रॉपर सिलेक्शन होगी तो आपका जो है थीसिस जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्टिव के साथ चलेगा। और फिर मैं आपको सिंपली ये सजेस्ट करूँ कि ये वर्ड जो माइनॉरिटी का वर्ड है वो आप इस प्रपोजल में से माइनॉरिटी का वर्ड रिमूव कर दें जहां जहां आपने माइनॉरिटी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास माइनॉरिटी का एक अलग से टॉपिक मौजूद था, बल्कि एक नहीं, आपको वहां 2-3 टॉपिक्स तीन। नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो माइनॉरिटी की बिल्कुल बजाय ठीक आप सीधा सीधा अगर आप पठान की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो आपके जो है वो टॉपिक जो है वो बिल्कुल सीधा चलता रहेगा। अच्छा, इससे अगले स्लाइड्स पे चलें जरा आप। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जरा वन बाय वन आप जरा स्लाइड्स पे रुकते जाइएगा। ठीक है, उस पे जाएं जो आपका रिसर्च क्वेश्चंस वाला और ऑब्जेक्टिव्स वाले स्लाइड्स हैं। अच्छा, ये पीछे वाले पे जरा रुकिएगा जहाँ पे आपने रोड मैप से पहले एक दिया हुआ था। पीछे पीछे पीछे, इससे पीछे, हाँ, रोड मैप ऑफ रिसर्च। ये रोड मैप ऑफ रिसर्च जो है ये आपने एग्जैक्टली का मेथोडोलॉजी, फिर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फिर सैम्पलिंग और कैटेगरीज और ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, लिमिटेशंस, फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। तो ये रोड मैप के हवाले से तो अगर चलें, आपका ये रोड मैप अगर मैं मान भी लूं कि आप बिल्कुल इसी तरीके से चलिए, आपने इसमें शुरू में इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू वगैरह निकाल दिया। जी ये मैम, मैं हमने थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जो मैंने मैम सॉरी लिटरेचर रिव्यू जो दिया हुआ मैंने, वो सारा ये चीज़ें हैं। असल में मैं देख रहा था मेरी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने सिर्फ उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाई कि मैं लिमिटेड टाइम में अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकूँ। राइट, ओके, मैं आपको सिर्फ ये कही थी कि जो हमने सैंपल छोटा सा अपलोड किया था ना वो इसके मुकाबले में जरा ज्यादा छोटा और स्पेसिफिक था। और उसमें हमारे ये लास्ट एक स्लाइड था कि हम प्रपोज कर रहे होते हैं कि हमारे जब अगर हमारा रिसर्च टॉपिक अप्रूव हो जाता है तो हमारी फ्यूचर चैप्टराइजेशन किस तरीके से होगी।
तो वो आपने अगर उसमें देखा होगा, वो हमारे सैंपल के अंदर एक आखिरी स्लाइड था जिसमें हमने एक रोड मैप टाइप या कोई ऐसी चीज सजेस्ट की थी कि हम चैप्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो अदरवाइज तो आई थिंक रोड मैप जो है आपका ठीक लग रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट में है कि स्लाइड्स का ना, सारे स्लाइड्स का थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे हुआ है। अगले पे जी मैम जाइए, बिल्कुल। नेक्स्ट पे जो आपका रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, ये जो आपका जो दो हैं स्लाइड्स, ये आपने जो है आपने अगेन इस पे माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, जो आप हालांकि आपके जो पठान हैं, आप ये तो नहीं क्लेम कर रहे ना कि आपके पठान जो हैं वो नॉन मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं? बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल आप ऐसा कोई नहीं क्लेम कर रहे। तो मैं इस नहीं। वजह से ही आपको अगेन आई वुड से कि एनीथिंग दैट रिलेट्स टू नॉन मुस्लिम्स, वो आपको मेरी पहली सजेशन है कि आप इस प्रपोजल में से जो नॉन मुस्लिम वाला पार्ट है उसको आप हम्म। उसमें से निकाल दें, क्योंकि जो आप फाइनल एग्जाम अभी सबमिट करवाएंगे, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम आप अगर पठान के ऊपर देखें, आपको सिंपली ये डिसाइड करना है कि आप अपना फाइनल एग्जाम जो है वो नॉन मुस्लिम को लेके चलेंगे या आप अपना फाइनल एग्जाम जो है वो पठान को लेके चलेंगे। बिकॉज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप पठान पे ही फोकस रखें, क्योंकि फॉर जी इंस्टेंस ऑब्वियसली मैम पठान लेके चलेंगे। जी पठान लेके चलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉन मुस्लिम को लेके आ रही है प्रपोजल के अंदर, उसको आप इस वजह से निकाल दीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के जो फोकस है उस पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, जी तो अब आप अगले वाले पे जाइए, इससे अगले, क्योंकि अगला तो सिंपली जो नेक्स्ट जो आपने बार दिखाया हुआ था ये पीछे वाले की ही रिप्रेजेंटेशन है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो बार तो वही है जो पिछले वाला था ना, जो आपने उसमें जी परसेंटेजेस जी लिखी थी। जी, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको मैंने वही कमेंट है, क्योंकि आपने शुरू में भी एक ऑब्जेक्टिव का स्लाइड दे दिया, तो आपको दो जगह पे ऑब्जेक्टिव का स्लाइड चाहिए ही नहीं, आपको एक ही जगह काफी है। और यहाँ पे आपने कहा हाउ माइनॉरिटीज, आई वुड से अगेन के माइनॉरिटीज की बजाय हाउ पठान आर रिप्रेजेंटेड, माइनॉरिटी का लफ्ज हटा के पठान का लफ्ज पठान का। इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है ओके। और फिर आपने कहा कि आफ्टर परफॉर्मिंग अ पायलट स्टडी, ये आपने पायलट स्टडी कब कंडक्ट की या आप प्रपोज कर रहे हैं कि मैं करूंगा? मैं प्रपोज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, जरा आप आगे चलिएगा। आप देखें ना कि आप अगर अपनी लैंग्वेज ही देख लें पायलट स्टडी वाली, उसमें आपने लिखा है इट हैज बीन डेवलप्ड। तो हैज बीन डेवलप्ड का मतलब होता है कि ये काम जो है वो डेवलप हो ऑलरेडी गया। हो चुका है। ठीक है, और फिर आपने जब रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह लिखे, यहाँ पे आपको हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप हाउ व्हाट व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर बना लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। अगर आप पठान वाले थीम पे चल रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप सिंपली यही कह दें कि हाउ पठान आर रिप्रेजेंटेड इन पाकिस्तानी फिल्म्स, चाहे वो आपकी उर्दू, पंजाबी या पश्तो जो भी आप उठा रहे हैं। ठीक है, तो यू कुड से ओके कि मैम। जी क्वेश्चन ये है कि हाउ पठान आर रिप्रेजेंटेड इन पंजाबी और उर्दू फिल्म्स। क्योंकि आपको जब लिटरेचर रिव्यू सजेस्ट किया था उसमें मेंशन की थी उर्दू और पंजाबी फिल्म्स, बिकॉज आई एम श्योर कि जो पश्तो फिल्म्स हैं, पश्तो फिल्म्स गालबन पठानों को इस तरह के नहीं स्टीरियोटाइप्स करते। करती हैं, नहीं करती, नहीं करते राइट? मैम नहीं करते। तो व्हेन यू नो फॉर श्योर कि पश्तो फिल्म जो है वो उस तरह का स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट करती, तो फिर आप सीधा सीधा यहाँ लिखें कि हाउ पंजाबी फिल्म्स आर रिप्रेजेंटिंग पठान कम्युनिटी, और दूसरा क्वेश्चन हाउ उर्दू फिल्म्स आर रिप्रेजेंटिंग पठान्स। ठीक है, तो आप चाहें तो दोनों को कर लें, पंजाबी और उर्दू, और चाहें तो सिर्फ उर्दू ही ले लें, क्योंकि अभी जब मैंने आपसे लैंग्वेज पूछी तो आपने मुझे कहा कि जी आप उर्दू फिल्म्स उठा रहे हैं, तो सिंपली यही लिखते हैं कि हाउ पठान आर रिप्रेजेंटेड इन उर्दू फिल्म्स, या इवन अगर आप जनरली भी लिख रहे हैं कि हाउ पठान आर रिप्रेजेंटेड इन उर्दू पंजाबी फिल्म्स, तो या पाकिस्तानी फिल्म्स, दैट वुड आल्सो वर्क। बट द मिनट यू से कि जी पश्तो फिल्म पठान का इस तरह का स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट करती, तो इन दैट केस आई वुड से कि फिर आप लैंग्वेज जो है फिल्म्स की उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि यू वुड प्रोबेबली लर्न कि शायद दोनों ही फिल्म्स जो हैं ओके वो मैम, दोनों और मैं लैंग्वेजेस सिर्फ की। उर्दू को लेके चलता हूँ। हाँ, आप सिर्फ उर्दू कर दें। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि जी कंपैरेटिव है कि
पंजाबी फिल्म्स किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं और उर्दू फिल्म्स किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं, तो कंपैरेटिव करेंगे तो शायद आपका नतीजा यही निकलेगा कि गालबन दोनों ही एक तरह के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करती हैं, राइट। अगर आप ये कहते हैं कि उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्म जो हैं वो पठानों के एक ही तरह के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करती हैं, तो ये आपकी हाइपोथेसिस होगी जो कि इवेंचुअली यू कैन प्रूव इट राइट और रॉन्ग। तो बेसिकली जो आपने कहा कि इज देयर एनी टाइप ऑफ बायस इन मूवीज, तो ये इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, ये जो आपने बीच में डाला हुआ है, ठीक है। तो इधर पाकिस्तानी मूवीज प्रोवाइडिंग फेवरेबल और नेगेटिव, तो आपने ये फेवरेबल और नेगेटिव को भी एक ही जगह पे डाल दिया है। तो आप उसको जो है, मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चनर और क्वेश्चन फॉर्मेशन पे हमने बात की थी, तो ये सजेस्ट किया था और काफी सारे रिसर्चर्स कह रहे थे कि आप एक जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहे होते हैं उसमें कोशिश किया करें कि आप एक ही आइडिया लेके चलें। तो एक ही आइडिया को जरा प्रूव या उसको सही या गलत साबित करना आसान होता है ना, तो सिंपली आप उसको इसी तरीके से कर रहे होते हैं। तो फिर आपको आखिरी उसमें सजेशन यही होगी कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि माइनॉरिटी, यू मेक अ डिसीजन कि आपको माइनॉरिटी की बात करते हुए चलना है या पठान की बात करते हुए चलना है। तो इवन इफ यू थिंक कि जी पठान जो है वो माइनॉरिटी की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जो इस प्रपोजल से रिलेटेड फ्यूचर वर्क है उसको और ज्यादा नैरो कर लें, ठीक है। तो ताकि जो दो वर्ड्स के साइमल्टेनियस यूज से हमें जो कंफ्यूजन हो रही है हम उसको अवॉइड कर सकें, ठीक है। जी, अगले नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप जाइएगा। ये आप कंक्लूजन रुक जाइए यहाँ पे। जब आप प्रपोजल बना रहे होते हैं, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 हफ्तों में गालबन आप मौजूद थे, तो मैंने ये कहा था कि आपको प्रपोजल स्टेज पे कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि आपको डिस्कशन एंड एनालिसिस मेथड क्या है। कंक्लूजन पे आप बाद में पहुंचेंगे जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की, द स्टडी हैज बीन कंडक्टेड, ठीक है। तो जो चीजें अभी हमने की नहीं है उनके लिए हम हैज बीन कंडक्टेड तो कह ही नहीं सकते। आप इस पे डिस्कशन एंड एनालिसिस का एक वो लिखते, और अगर तो आप कंटेंट एनालाइज कर रहे हैं, उर्दू पंजाबी फिल्म्स को देख रहे हैं कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, या इवन जो टीवी कमर्शियल आपने दिखाया कि उसने कहा कि गधा ले आओ और गद्दा ले आओ और गद्दे के बजाय वो गधा पकड़ के ले आया, तो जो वो कैरेक्टर था उसकी, वो अपनी अपीयरेंस से पठान लग रहा था। किस किस्म का पठान लग रहा था वो? जी मैं पठान था ना, वो टोपी पहनी थी और वो साफा लिया हुआ था, शलवार कमीज थी, और बोलने की जो उसकी टोन थी वो पठान वाली बनाई हुई थी उसने। अच्छा, उस तरह से उसने क्रिएट किया था। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट एनालाइज कर रहे होंगे, तो आप कंटेंट एनालिसिस के साथ थ्योरेटिकल वैलिडेशन या इस किस्म की चीजें जो हैं सजेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं कंटेंट एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये जो हैज बीन कंडक्टेड वाला जो वर्ड है, ये आपको ये लैंग्वेज उस वक्त आएगी जब आपकी थीसिस अगर आप कर रहे होते या रिसर्च कर रहे होते और आपका थीसिस कंप्लीट हो गया होता और मैं आपसे कहती कि आप अपनी थीसिस को प्रेजेंट करें, तो फिर उस वक्त आप ये बात कहेंगे कि द स्टडी एक्चुअली हैज बीन कंडक्टेड, राइट। तो सिंपली जो है वो आपको यहाँ पे आपको डिस्कशन एंड एनालिसिस लिख के आपने सिंपली ये कहना था कि जी कंटेंट एनालाइज कर रहे हैं। और अगर पब्लिक सर्वे होता कि जी आपने मिसाल के तौर पे इस वक्त आप लाहौर में मौजूद हैं और आपने जाके 100-200 लोगों से पूछ लिया कि जी पठानों के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करती है उर्दू फिल्म या पंजाबी फिल्म, तो उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनको बेवकूफ़ दिखाते हैं, उनको होमोसेक्सुअल कह के बात करते हैं वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स पे अगर आप क्वेश्चनर बना लेते तो फिर आप सिंपली ये कह सकते थे कि जी मैं फॉर इंस्टेंस पब्लिक सर्वे कंडक्ट करूंगा और उस सर्वे पर SPSS के ऊपर एनालाइज कर लूंगा, ठीक है। तो वो इस किस्म की चीजें होती हैं। जनरली आई थिंक कि प्रपोजल इज फाइन, ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो आपकी वर्ड और वोकेबलरी सेक्शन है उसके हिसाब से आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। ओके, गुड, ऑल राइट, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।